नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे बने भाजपा पार्टी कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा नेता शंकर चौधरी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उन्होंने कल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये बड़े शर्म की बात है कि कल पंचायत चुनाव के दिन पूरे प्रदेश में करीब 30 लोगों की हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा और हत्याएं अन्य किसी प्रदेश में नहीं होती। बंगाल में ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि 11 तारीख को जब पंचायत चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद भी आतंक का ये दौर जारी रहेगा और न जाने और कितने लोगों की जान पर खतरा मंडराएगा। इसके साथ ही उन्होंने कृष्णा प्रसाद को लेकर अन्य भाजपा नेताओं से बिल्कुल अलग बयान दिया और कहा कि वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। আপনারা জানেন कि গতকাল পশ্চিম বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। কালকে দিনটা গণতন্ত্রের পুরোপুরি হত্যা হয়ে গেল। প্রায় 30 জন মতো সাধারণ লোকের প্রাণহানি হলো। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যতে কোনো জায়গা কোনটা লোকে হত্যা হয় না। সামান্য কথা কাটাকাটি হয়, একটু মারপিট হয়, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় খুব দুঃখের বিষয় কি এই তৃণমূল শাসিত রাজ্যে এই সরকার অপদার্থ সরকার, এইখানে আইন শৃঙ্খলা কিচ্ছু নেই, প্রশাসন বলে কিচ্ছু নেই, সম্পূর্ণ গুন্ডারাজ চলছে। তাই কালকে দিনটাতে প্রায় 30 জনের প্রাণহানি হয়েছে। এটা খুব দুঃখের বিষয়, যেটা হওয়া উচিত না। নিশ্চয়ই বলুন বলুন, কিছু বললে বলুন নিশ্চয়ই। আপনাদের যে বিজেপির ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী কৃষ্ণা প্রসাদ নিয়ে একটা বিতর্ক হয়েছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, কৃষ্ণা প্রসাদ একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কারণ ও প্রতিদিন কোথাও না কোথাও মন্দিরে দান করেন, গরিব মানুষদেরকে কিছু কিছু দান করেন, ক্যান্সার পেশেন্টকে দান দেন, বিকলাঙ্গ যারা আছে হ্যান্ডিক্যাপ তাদেরকে হুইল চেয়ার দেন, সমাজে কাজ করেন, বিয়ে শাদিতে মানুষকে হেল্প করেন, মেয়েদেরকে হাতে টাকা পয়সা তুলে দেন যাতে ওর বিয়ে সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায়। তো কৃষ্ণ প্রসাদকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না কি উনি বিশেষ সমাজসেবী নয়। কিন্তু আমরা যা দেখলাম, আমি কাগজে দেখেছি আমি কি ওনার নামে কিছু অভিযোগ এসেছিল। কি অভিযোগ এসছে? অভিযোগ পেপারে যা দেখলাম সেটা শুনছি কি ওনার নামে কিছু অভিযোগ এসেছিল, কি কার সাথে হোটেল দেখা করেছিলেন না কি করেছিলেন। আমি সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে বলি, আমি ওনার সাথে সরাসরি, কারণ হচ্ছে কি আমরা বিজেপি 2-3 বছরে বিজেপি নয়, যারা 3 বছর 4 বছরে বিজেপিতে এসছেন তারা বিজেপির সম্পর্কে কতটুকু জানে সেটা আমার জানা নয়। কিন্তু আমরা 40-50 বছর ধরে সংঘ পরিবারে বিজেপির সাথে যুক্ত আছি। আপনাদের কাছে আমরা বলি কি দুঃখ আমাদেরও হয়, আপনাদেরকেও নিয়ে হয়। কারণ কি আপনারা কিছু কিছু আছেন প্রেসওয়ালা যারা
2 বছর 4 বছর যারা বিজেপি করেন তাদের সাথে সম্পূর্ণ কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে ওটা রিলিজ করে দেন। আপনারাও বলি, অনুরোধ করি কি আপনারাও অন্তত পুরনো কাজ করতাম, নট অনলি মি, আমার মতন যারা পুরনো কাজ করতাম, ডক্টর সাহেব আছে, অজয় পোদ্দার, পাঠকজি আছে, পবন সিং ভট্টাচার্য, অনেক পুরনো কাজ করতে আছে আসানসোলে, তাদেরকে একবার জিজ্ঞেস করবেন, তারপরে প্রেস রিলিজ করবেন। আমার মনে হচ্ছে এটা সঠিক হবে। তো এই যে বিষয়টা আমি কৃষ্ণা প্রসাদকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে কয়েকজন প্রেস বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল এই বিষয়টা 2 দিন আগে। তা আমি ওনাকে বললাম, দেখুন আমি তখনই এই বিষয়টা বলতে পারবো যখন আমি ওনার সাথে যোগাযোগ করে নেব, কারণ বাস্তবিক জিনিস না যাওয়ার পর আমি প্রেসের মুখ খুলবো না। তা আমি ওনার সাথে কথা বলেছিলাম কি ভাই আপনার নামে যে অভিযোগ কি আপনি পার্টির লোক নন বা আপনি এই লোক সাথে কোথাও কোনো দুষ্কৃতিকারীদের সাথে দেখা করেছিলেন, উনি বললেন কি না এইসব বিষয় নয়। আমি গেছিলাম আশা শর্মার বোনের ছেলে আর ওরা ভাইয়ের ছেলে মারা গেছিল, ছেলে মেয়ে, ওই সুলতানগঞ্জ ভাগলপুরে, ওদের বাড়িতে গেছিলাম দেখা করতে। ঘটনাচক্রে ওই কুন্দন সিং নামে কোনো লোক আছে, সে নাকি বলছিল কুন্তি সিং যারা বিধায়ক ছিলেন ধানবাদে তারই নাতি, ও 1 মাস 25-15 দিন আগে আসানসোলে উনার সাথে যোগাযোগ করেছে। যোগাযোগ করার পর ওদের জমি কারবারের সাথে ওরা হতে যুক্ত, কি জমি কেনা বেচা করবে উনার সাথে। তো ও এসছিল 2-3 আসানসোলে এসছিল। তারপরে ও ধানবাদে নাকি গোবিন্দপুরে ওরা বসেছিল, উনি ওই দিক থেকে আসার পথে লিট্টি চোখা হোটেল, আমি জিজ্ঞেস করলাম ওনাকে কি ভাই আপনার নাম সাথে বিজেপি জড়িত আছে, সুতরাং আমরা বিজেপি করি মনে প্রাণ দিয়ে, তো সুতরাং আপনি বলুন তাহলে আমি বিজেপি হয়ে আমি বলতে পারবো। উনি বললেন লিট্টি চোখা হোটেল খালসা হোটেলের অপোজিটে, সেই হোটেলে আমাকে ডাকা হয়েছিল, আমি গেছিলাম জমি সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে। এর মধ্যে কিভাবে কি হয়েছে সেটা আমার জানা নয়, বাস এইটুকু জানি কি জমি নিয়ে ও কথা বলতে আমি গেছিলাম। सर जब 18 अप्रैल को कृष्णा प्रसाद का मलय अटक वाला जो केस वगैरह का झमेला हुआ था, तो उसमें उन्होंने इम्तियाज का सपोर्ट किया था, जो उनका नाम ले रहे हैं उनका सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको खाना बांटने नॉर्थ में नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसा वो आरोप लगाए थे उत्पल सिन्हा पे कि उनको उनके द्वारा ही खाना बांटने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके बाद फिर बनपुर में उन्होंने उन्हीं के खिलाफ बार बार भाषण दिया था, कभी फिर ऐसा। तो इसमें कुछ देखिए ये इम्तियाज का मामला, कृष्णा प्रसाद का मामला, राधिका का मामला, इसका मामला, जयदोर हमको इससे मतलब नहीं है, ये तो उन लोगों का व्यक्तिगत कोई मामला और झगड़ा वो अलग बात है, इससे हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ आपका नेत्री ने कहा कि ये हम लोग को कोई ये बीजेपी में है नहीं। हाँ वही ठीक है, कृष्ण भी यही कहा, इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ जरूर ये बात आपको पूछना जायज है, मैं भी इसको बात पर इन्होंने कब आपका दल का झंडा पकड़ा है, ये फिर छोड़ भी दिया? नहीं, अभी कब झंडा इन्होंने पकड़ा आपका दल का? देखिए शुभेंदु अधिकारी जी का प्रोग्राम था बनपुर में, जी मैं बनपुर गया था, शुभेंदु का के साथ में था, कृष्णा प्रसाद भी वहाँ उपस्थित हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या आज झंडा पकड़ के बीजेपी ज्वाइन करेंगे? उनका जवाब था स्पष्ट कि मैं तो बीजेपी छोड़ा ही नहीं, तो झंडा पकड़ने का सवाल क्या पैदा होता? 2021 में इलेक्शन के खत्म होने के बाद ही उन्होंने प्रेसमेंट करके कहा कि हम बीजेपी छोड़ रहे हैं और हम बिजनेस में जा रहे हैं। हो सकता है उस वक्त बिजनेस में गए होंगे, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इस पर जिला क्यों नहीं कुछ बोलता। आज जमुरिया में जुलूस हुआ, कृष्णा प्रसाद जी बैनर के साथ आगे चल रहे थे, ठीक है, और जिस दिन निर्वाचन पंचायत निर्वाचन में आज से करीब 3-4 दिन पहले उनके घर पर प्रत्येक पंचायत सदस्यों को 5,000 रुपया करके 200 पंचायत सदस्यों को और समिति और जिला परिषद को पैसा दिया गया। किसके हाथों से? कृष्णा प्रसाद ने पैसा दिया है अपने ऑफिस से, और बाद में हमारे जिला के सभापति माननीय दिलीप देव भी वहां पहुंच गए थे। आखिर कृष्णा प्रसाद यदि भाजपा में नहीं है तो आखिर ये लोग क्यों उसके पास गए थे और उन्होंने पैसा क्यों दिया? ये बात तो स्पष्ट होनी चाहिए ना। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं आप उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ 4 साल से बीजेपी आया हुआ व्यक्ति बीजेपी के संबंध आइडियोलॉजी में बताएगा ना, मैंने जीवन दे दिया मैं बताऊंगा। आखिर ऐसा क्यों होगा कि उनके घर पर पैसा भी लगे? पैसा निर्वाचन के पहले पंचायत सदस्यों को जब उन्होंने दिया, क्या रामायण पाठ करने के लिए दिया था? किसने दिया था?
न कीर्तन करने दिया था, न मंदिर बनाने के दिया था, निर्वाचन के लिए दिया था। तो निर्वाचन के लिए कृष्णा प्रसाद पैसा क्यों दिया गया? दिलीप देख के वहां उपस्थित हुए रात में 10 बजे जिला सभापति, कैसे कहेंगे जो बीजेपी है कि नहीं है? जिला सभापति जिले का प्रथम व्यक्ति होता है, हमारे राज्य का सभापति राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है भाजपा का, इसलिए जिला सभापति जहां जाता है वो जगह ऑथेंटिक हो जाता है, इसलिए इस पर विचार करनी चाहिए। देखिए टीएमसी वाले लोग भी बहुत प्रश्न उठाते हैं। टीएमसी में तो पहले लोग विशिष्ट चोर बनते हैं, उसके बाद विशिष्ट व्यवसायी बनते हैं, उसके बाद विशिष्ट नेता बन जाते हैं। यहाँ भी विशिष्ट समाज सेवी है, यहाँ भी विशिष्ट व्यवसायी है। जो लोग सुबह प्रथम चोरी किए हैं, उसके बाद विशिष्ट समाज सेवी बने हैं, उसके बाद विशिष्ट नेता बन जाएंगे, विशिष्ट एमएलए एमपी बन जाएंगे। यही तो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि कृष्णा प्रसाद दल के सरासरी जुटते हैं और उन्होंने पैसा भी बांटे थे, लेकिन आपका दल का विधायक भी इसका खिलाफ बोल रहे हैं, कृष्णा प्रसाद के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन बोला? अग्निमित्र पॉल ने बोला कृष्णा प्रसाद के खिलाफ, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अनिता पाल बोलिए। अच्छा ये आपने बताओ, कहा कि मैं उनका विरुद्ध, हम उनका जवाब देंगे, आप आइए हम उनका जवाब देंगे, नहीं तो पक्का हम जवाब देंगे। देखिए जवाब मैं जो प्रश्न आप लोग मैं जो उत्तर दिया कि उसके पास ये लोग हैं, हमारे राज्य का संपादक लखन गुरु जी हैं, वो भी तो विधायक हैं, वो भी तो प्रोग्राम में जाते हैं। कभी कभी समाज सेवा मूलक काम हो, उनका धार्मिक अनुष्ठान हो, इस कार्यालय में हमारा भाजपा कार्यालय में वो कार्ड देते हैं। हम लोग भी यहाँ से 5 दर्जन ये क्यों विरोध कर रही है? ये क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब वही देगी। ये क्यों कर रही है, क्यों नहीं? आप बार-बार मुझसे जो आप पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि 4 साल में कुछ भाजपा के बारे में बहुत बात बोल रहे थे, ये किसको आप इंडिकेट कर रहे हैं? हम किसी का नाम लेके इंडिकेट हैं। बहुत सारे पश्चिम बंगाल में नेता है जो पश्चिम बंगाल में 2-4 साल पहले आए हैं, आ करके और उसके बाद वो बीजेपी का कमान थमाए हुए हैं। जब तक पश्चिम बंगाल में पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल का तख्ता पलट करना बहुत ही मुश्किल इस है। पंचायत बोर्ड में पुराना को सम्मान मिला है? मुझे लगता नहीं है कि सबको मिला है, कुछ लोगों को मिला होगा, सबको मिला ऐसी बात नहीं है। आप अभी कौन सा पोस्ट में हैं? मैं अभी पश्चिम बंगाल का स्पोक्स पर्सन हूँ, मुखपत्र पश्चिम बांग्ला नाम শঙ্কর চৌধুরী। আরো কিছু আছে তো জিজ্ঞেস করে দিন। कृष्णा प्रसाद भाजपा नेता ही हुआ ना? कृष्णा प्रसाद देखिए भाजपा नेता देखने से तो सब कुछ समझ आ रहा है। आपका हिसाब से वो क्या है, भाजपा नेता है या समाज सेवी है? देखिए समाज सेवी तो है ही, इसमें तो नो डाउट, ठीक है। लेकिन भाजपा नेता उनके पास कोई पद नहीं है तो नेता नहीं बन कर्मी? सकते। कार्यकर्ता समर्थक तो हो ही सकता है, आप भी हैं वो भी है। नहीं ऐसे बात हम नहीं, हम मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, हम है या नहीं वो बात की बात है। कृष्णा प्रसाद आपका कार्यकर्ता है या नहीं है? कृष्णा प्रसाद हमारा समर्थक है वर्तमान स्थिति में। समर्थक नहीं, कार्यकर्ता है या नहीं? समर्थक अलग चीज होता है, कार्यकर्ता अलग। देखिए कार्यकर्ता तो कोई भी हो सकता है, जो पार्टी का काम करता है वो जिस हिसाब से संगठन का काम किया है उस हिसाब से वो कार्यकर्ता है। जब उन्होंने पैसा दिया है, राज्य का जिला का सभापति उनके पास जा रहे हैं, उस हिसाब से वो कार्यकर्ता हुए। नेता तो है नहीं अभी, क्योंकि उनके पास कोई पद है नहीं। नेता तभी होगा नहीं जब उनका पद होगा। রিজাল্টের পর কারো কোনো গ্যারান্টি নেই কি হত্যা হবে না, মারপিট হবে না, সেখানেও মারপিট হবে, আরো কিছু লোকের প্রাণ যাবে। এখন কিছু লোক হাসপাতালে ভর্তি আছে, যারা সিরিয়াস অবস্থায় আছেন, তারা কি হবে জানি না, ভগবান তাদেরকে সুস্থ করুন তাড়াতাড়ি, গেট ওয়েল সুন। আমরা চাইছি কি পশ্চিম বাংলায় এই যে সরকার চলছে, এই সরকারকে বিদায় দিয়ে একটা এমন সরকার আনুন জনগণবাসী পশ্চিম বাংলায় যে এখানে আইন শৃঙ্খলা যে বজায় রাখতে পারে। উত্তরপ্রদেশে কত গন্ডগোল ছিল আগে মুলায়ম সিং আমলে, আজকে দিনে যোগী সরকারের আন্ডারে আজকে ওইখানে মনে হচ্ছে কি একটা প্রশাসন আছে, সেরকম প্রশাসন আমরা পশ্চিম বাংলায় চাইছি। सभापति बोलेंगे मैं तो किसी को दायित्व दे नहीं सकता और ना ही किसी का दायित्व ले सकता हूँ। न लेने देने का बात नहीं, जो वास्तविकता है मैं वास्तविकता से आपको अवगत कराता हूँ। समझ गए? एक विशिष्ट समाज सेवी, विशिष्ट व्यक्ति, ये सब जो भी बात है वो उसका है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है मैं आपको ये बातें बताई है कि ये परिस्थिति है जिले की। आप लोग जिला सभापति से बात मतलब करें। सीधा सी बात है कि भाजपा नेता के ऊपर जो आरोप लग रही है वो गलत है। भाजपा नेता किसके ऊपर?
कृष्णा प्रसाद भाजपा नेता ही हुआ ना। कृष्णा प्रसाद देखिए भाजपा नेता देखने से तो सब कुछ समझ आ रहा है। आपका हिसाब से वो क्या है, भाजपा नेता है या समाज सेविक है? देखिए समाज सेवी तो है ही, इसमें तो नो डाउट, ठीक है। लेकिन भाजपा नेता उनके पास कोई पद नहीं है, सिर्फ नेता नहीं बन कर्मी? सकते। अब कार्यकर्ता समर्थक तो हो ही सकता है, आप भी हैं, वो भी है। नहीं हम नहीं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, हम है या नहीं वो बात की बात है। कृष्णा प्रसाद आपका कार्यकर्ता है या नहीं है? कृष्णा प्रसाद हमारा समर्थक है वर्तमान स्थिति में। समर्थन नहीं, कार्यकर्ता है या नहीं? समर्थक अलग चीज होता है, कार्यकर्ता अलग चीज होता है। कार्यकर्ता तो कोई भी हो सकता है, जो पार्टी का काम करता है वो जिस हिसाब से संगठन का काम किया है उस हिसाब से वो कार्यकर्ता है। जब उन्होंने पैसा दिया है, राज्य का जिला का सभापति उनके पास जा रहे हैं, उस हिसाब से वो कार्यकर्ता हुए। नेता तो है नहीं अभी, क्योंकि उनके पास कोई पद है नहीं। नेता तभी होगा जब उनका पद होगा। आज आसनसोल के बीएनआर मोड़ इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन आधे घंटे के लिए रोड जाम कर दिया गया। कल पंचायत चुनाव में जो हिंसा की घटनाएं हुई थीं उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं का कहना था कि कल जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई वो लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं। क्या लेके भी आपको मालूम है कि कल सारा पश्चिम बंगाल में जो हत्या लीला चलाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा और ममता बनर्जी दोनों मिलकर ये किया है। जगह जगह में सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो उन लोग को बहुत सुविधा हुआ। सेंट्रल फोर्स पहुंचा नहीं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को पहुंचाने का माने उन लोग बाधा दिया पहुंचने में, बैठा के रखा गया लेकिन पहुंचने नहीं दिया गया। स्टेट पुलिस तो था भी नहीं, सिविक पुलिस से करवाया गया, जहां पर बार बार बोला गया था कि सिविक पुलिस नहीं इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो फिर से किया गया। 18 जन का मृत्यु हुआ है और पूरा छप्पा हुआ है। हमारा विधानसभा में टीएमसी के कुछ गुंडा है, विनोद मुनिया, अर्जुन सिंह, बंदूक लेकर, बम लेकर, मुंह में कपड़ा बांध के वो लोग जेमारी का सारे बूथ लूटा है। हम लोग चाहते हैं ये पंचायत इलेक्शन कैंसिल किया जाए, नल एंड वॉइड किया जाए। इतना बम गोली सारे पश्चिम बंगाल में मृत्यु ये कहाँ से आया? एनआईए इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो लोग मारे गए हैं उनका सीबीआई चाहिए, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा का इमीडिएट अरेस्ट चाहिए, क्योंकि वो एक मर्डरर है, वो एक खूनी है और उनके साथ उनका हाथ खून से रंगा है। ममता बनर्जी, राजीव सिन्हा एक साथ, तो हम लोग अरेस्ट चाहते हैं, इसलिए आज हम लोग अवस्थान विक्षोभ किया है। हम लोग ममता बनर्जी और राजीव सिन्हा का फोटो लेकर बैठे थे, जलाया कि नहीं जलाया ये मालूम नहीं है। Rajshri Dance Academy cordially invites all of you to the Institute's 12th annual program. The program will be held on 19th of August 2023 at Ravindra Bhavan, Asansol. The program will start from 4 p.m. onwards. Rajshri Dance Academy invites all of you to be a part of this magnificent program and get yourself mesmerized by the enchanting culture of our nation that will be on display by the students of Rajshri Dance Academy. कल पूरे प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बर्धमान ज़िले के भी विभिन्न इलाकों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। 11 तारीख को मतों की गिनती होगी, उससे पहले मत पेटियों को सुरक्षित रूप से रखा गया है। सालानपुर ब्लॉक के पंचायत चुनाव की मत पेटियों को आछड़ा यज्ञेश्वर इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। इनकी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है।
अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। कुल्टी के डीसरगढ़ इलाके में स्थित एक TMC पार्टी कार्यालय में बीती रात तोड़फोड़ हुई। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि कल रात तकरीबन 1:30 बजे उनको उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर जाकर जानकारी दी कि पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि किसने तोड़फोड़ की है, इसके बारे में क्या कुछ पता चला, तो कार्यकर्ताओं ने बताया कि अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन साकतोड़िया फाड़ी के अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये खबर दी कि पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। घटनास्थल पर कुछ सिविक वॉलंटियर और पुलिस के वाहन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से शांत रहने के लिए कहा और पुलिस को जांच में सहयोग करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने संदेह के आधार पर राजा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि राजा का पूरा परिवार भाजपा समर्थक है, लेकिन इसके पीछे असली सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि इस घटना के पीछे भाजपा का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन भाजपा के युवा नेता टिंकू वर्मा ने बताया कि जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि हर कोई भाजपा का समर्थक है। आज ऑनलाइन से भी कोई भाजपा का समर्थक बन सकता है। ऐसे में वो व्यक्तिगत तौर पर कहाँ क्या कर रहा है इसकी जिम्मेदारी पार्टी की नहीं है। उन्होंने इस मामले की पुलिस द्वारा सघनता से जांच की मांग की। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने इस बारे में कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर বললাম তো ঘটনাটা হয়েছিল এইখানে আমাকে আমাদের ছেলেরা আমার বাড়িতে যায়, তখন রাত্রি
15-2টা যেটা 15-2টা হবে। তখন বললো এরকম পার্টি অফিস দাদা ভাঙচুর হয়ে গেছে। আমি কে ভেঙেছে, কি কোনো খবর পেয়েছি? বললো না, কোনো খবর পাইনি। কে বললো? তখন ওরা বললো যে এমনি আমাদের রাবণ বলে একজন আছে, পার্টি কর্মী, শক্তির কর্মী, ওনার ভালো নাম হচ্ছে খুরশিদ আলম। ওকে খবর দিয়েছে বড়বাবু আমাদের সাতপুরে আইসি, যে এমনি এমনি অফিসটা ভাঙচুর হয়ে পড়ে আছে। যাই হোক, আমাদের ওখানে সিভিক পুলিশ টুলিশ রয়েছে, গাড়িও ছিল, পুলিশ গাড়িও ছিল। তারপর আমি আমার ছেলেদের বললাম যে ঠিক আছে, যা হয়েছে হয়েছে, তোমরা নিজেরা কিছু করতে যাবে না, তোমরা প্রাথমিকভাবে পুলিশকে জানাও। আমাদের স্থানীয় যে পুলিশ আছে সাতপুরে আইসি ওসি, তো ওনাকে, ওনার সব ছেলেরা গেছিলেন, ওনাকে জানিয়েছেন ভার্বালি জানানোর পর উনি, এবারে জানি না, আমি এখন যা শুনলাম যে উনি একজনকে আটক করেছেন। তার নাম হচ্ছে আগরওয়াল নাকি, ভালো নাম, ডাক নাম রাজা। তো ওকে আটক করেছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হয়তো আটক করেছে, হয়তো ওদের কোনো ইনফরমেশান আছে পুলিশের, ওই জন্য ওকে আটক করেছে। এবারে পুলিশ তদন্ত করছে, দেখা যাক কী হয়। ওই দীপ আগরওয়াল কী করে? দীপ আগরওয়াল ওদের পরিবার টোটালটাই বিজেপি করে। এবারে জানি না চক্রান্তটা কার, আমি বলবো না যে এই চক্রান্ত, এত বড় সাহস তো হওয়া উচিত নয়। নিশ্চয়ই কোনো চক্রান্ত আছে, কার সাজিতে হয়েছে বা কারো কথা কখনো হয়েছে, এটুকু আমি মনে করছি। আর কি মনে করছেন কেন হলো পার্টি অফিস ভাঙচুর? কেন হলো সেটা বলতে পারবো না, হয়তো আমাদের তো এখানে এই এলাকাতে কোনোদিন এসব হয়নি, কিন্তু এটা হঠাৎ হয়ে গেল, সেটা আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তো কি মনে হচ্ছে কোনো বিজেপির এখানে বড় সড়ো চক্রান্ত আছে? থাকতে পারে, থাকতে নিশ্চয়ই পারে, বিজেপি চক্রান্ত থাকতেও পারে। কি আপনারই ছেলে? হ্যাঁ, কি হয়েছিল কালকে রাত্রে? আমি ওটাও জানি না বাবা, আমি তো ঘরে, এখানে কি হয়েছে না হয়েছে কোনো কিছুই জানি না। কি শুনলেন? ওই যে ভাঙাভাঙি করেছে, এই করেছে, কোথায়? এবার কোথায় করেছে ওটাও জানি না। ছেলে আপনার কোথায় আছে? ওকে ফাঁড়ি নিয়ে গেছে, এখন তুলছি, তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে ও, সেরকম খবর আছে? সেটাও আমি জানতে পারি, জানি না। আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, আমি ধানবাদ কাজ করি। কি নাম আপনার? গোপাল আগরওয়াল, ওর বাবাও এটি, ছেলের কি নাম? রাজা আগরওয়াল। আপনারা জানেন যেগুলো ঘটনাটা কালকে ঘটেছে ডিশরগড়ে, একটা টিএমসি পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে, 104 নম্বর ওয়ার্ড বলা হচ্ছে। যে ভাঙচুরগুলো হচ্ছে তাতে সরাসরি যেভাবে বলা হচ্ছে কি টিএমসি বিজেপির ছেলেরা এটা ভাঙচুরটা করেছে, ভারতীয় জনতা পার্টির বিজেপির সবাই সমর্থক আছে, অনলাইন মোবাইল থেকেও তারা সমর্থক হয়েছে। কে নেশা হালতে কখন কাকে ভেঙে দিচ্ছে, ভাঙচুর করছে, তার পুলিশ তদন্ত করুক, দেখুক কি ভাঙচুরটা কে করেছে। আর তার সাথে আমাদের মনে হয় কি টিএমসির নিজস্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বরই এটা ঘটনা আছে। আমরা চাইবো কি পুলিশ এসে তদন্ত করে দেখুক কি ঘটনাটা সত্যি কি মিথ্যে। এটা কিছু বলবেন? भाजपा का आरोप है कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान के बाद भाजपा के पोलिंग एजेंटों को टीएमसी द्वारा धमकाया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी डर से भाजपा के 6 कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ भाजपा ज़िला कार्यालय में आश्रय लेने पर मजबूर हैं। इस बारे में ज़िला भाजपा अध्यक्ष दिलीप दे ने बताया कि 2021 के विधानसभा चुनाव की ही तरह इस बार भी टीएमसी की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों को धमकी दी जा रही है, उन्हें जान से मारने की बात कही जा रही है। इसी डर से बाराबनी इलाके के 6 भाजपा कर्मी अपने परिवार के साथ ज़िला भाजपा दफ्तर में शरण लेने पर मजबूर हैं। আমাদের বুথে প্রায় সকাল থেকে ভোট ভালোই চলছিল, মাঝে সাঝে একটু করে হস্তাহস্তি হয়েছিল, কিন্তু শেষে দুটো একটা নাগাদ হুড়মুড় করে ওরা সবাই ঢুকে যায়, বুথ ক্যাপচার করে দেয়, ছাপা ভোট চালিয়ে যায়। সেই সময় আমাদের কিছু সিপিএম ভাই ছিল, আমরা ছিলাম, সেইভাবে কিছু একটু হাতাহাতি হয়, তারা প্রায় 150-200 মিলে পরে আমাদেরকে তেড়ে নিয়ে আসে। এখনও আমাদের অনেক ভাইয়েরা ঘর ছাড়া হয়ে আছে,
তাদের ঘরেও খুব অসুবিধা, প্রায় ঘরে ঘরে গিয়েও অত্যাচার চালিয়েছে। এই তো সকালবেলায় আমাদের একটা দাদা ভাই, বেশি না ও চাষ করে খায়, সবজি চাষ করে, তার জমি গিয়ে পরে পুরো তছনছ করে দিয়েছে, তাকেও ধমকি দিয়ে এসছে। আর একটাই কথা, ওদের রেজাল্টের পর তোদেরকে দেখে নেব। কি বুঝতে পারলাম না। ভয় এখন দেখুন, ওরা প্রায় যেদিকে যাচ্ছে 150-200 জন তেড়ে আসছে। এবার এখানে বুঝতে পারছেন যে আমাদের কতটা আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। ওরা সব টিএমসির দল, তৃণমূল। কালকে রাতের সময়। হ্যাঁ জানিয়েছি না, প্রশাসনকে জানানো হয়নি। আর প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি, কারণ সামনে আমাদের বুথের সামনে, পুলিশের সামনেই তারা এই কাণ্ডগুলো করছে। সেই জায়গায় পুলিশ একদম চুপচাপ, সাইলেন্ট। সজল বাউরি। কালকে ইলেকশন হওয়ার পর বাড়ি ছেড়ে এসছে, তারা কি দেখুন, 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলের হিংস্র বাহিনী যে সন্ত্রাস করেছে, আর সেইটা গতকাল আপনারা মিডিয়াতে দেখিয়েছেন যে কী ধরনের ভোট হয়েছে। প্রতিটি জায়গা প্রায় আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখাচ্ছেন যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন এপিসোডে প্রায় 33 জন মারা গেল, কালকে 16 জন। তো এই অবস্থায় যে কার্যকর্তা, যারা বিরোধী দলের কার্যকর্তা, তারা এইখানের প্রশাসন বলুন, তৃণমূলের যে বাহিনী, তার উপরে তো কোনো রকম ভরসা করছে না। এখানে গণতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাই নেই। তো কালকে ভোট হয়ে যাওয়ার ভোট যখন চলছে, তখন আমাদের যারা পোলিং এজেন্ট, তাদেরকে মারধর করে বার করে দেওয়া হয়েছে। শুধু বার করে দেওয়া না, তাদেরকে জানে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আমাদের জেলা পার্টি অফিসে গতকাল রাত থেকে রয়েছে। এরকম 6 জন আছে, এবং আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি যে 11 তারিখের যে আপনার কাউন্টিং রয়েছে, সেই কাউন্টিংয়ের পরে আর ব্যাপক সন্ত্রাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো তখন আরও কিছু এই ধরনের যারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করবেন, এই ধরনের কার্যকর্তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান আছে, আপনারা এখানে চলে আসবেন, আপনারা নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমরা দেখব, এবং আপনাদের যে এখানে ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা আমরা করে দেব, এটা আমরা বলে রেখেছি। যদিও আমরা এই যে হিংস্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি সব রকম ব্যবস্থা করেছি, তো তা সত্ত্বেও তাদের ওই 21-এর যে সন্ত্রাস, সেই সন্ত্রাসের কথা এরা ভুলতে পারছে না, সেই থেকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে, আর যার জন্য এই অবস্থা রয়েছে। আজ পর্যন্ত সকাল অবধি 6 জন এসছে। এরা সব বারাবণী বিধানসভার আছে। বাকি বারাবণী বিধানসভার আমার কাছে খবর আছে 2 জন আর ঝাড়খণ্ডে অলরেডি চলে গেছে নিরাপত্তার জন্য। তাদেরকে আমি আহ্বান করেছি যে জেলা পার্টি অফিসে চলে আসুন, তারা হয়তো আসবে। এবং বিভিন্ন জায়গায়, জামুরিয়া বলুন, এই জামুরিয়া আমি যাব একটু পরেই, ওখানেও কালকে মারধর করা হয়েছে এবং তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেই বাড়িতে যাব, কি অবস্থা আছে দেখব। এটা নিয়ে উপর মহলকে জানিয়েছেন যে প্রশাসনকে জানিয়ে কিছু লাভ নেই। প্রশাসনকে কালকে আমরা প্রচুর এখান থেকে অভিযোগ করেছি, কিন্তু কোনো তারা ব্যবস্থা নেয়নি। তো তা হলো যেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান অনুসারে প্রশাসনকে যেটা জানাবার বিষয়, সেটা আমরা জানিয়েছি, এবং আগামী যে দিনগুলো, সেই দিনগুলোতে আমরা জানাবো। दिलीप दे, आसनसोल जिला सभापति। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया
खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।